Hello everyone. Good evening, dear learners. Namaskar, छात्रों. Uh, in the last video, we have discussed about the complete syllabus of class 12th uh, English core 301. You may also say that video was related to how the question would come, on which serial number you will get which type of the question. And section wise we have already discussed. But whatever we discussed in the past, that was only of 80 marks. 20 marks still remains. And these 20 marks, board has decided for internal assessment, assessment of listening and speaking skills, ASL. So dear students, today now we discuss about the guidelines for internal assessment. And this internal assessment, it will be applied for both class 11th and 12th. So there should be no any confusion. This is annexure 1. You may see on the screen, and total marks 20. The guidelines for internal assessment, ALS, must be seen as an integrated component of all four language skills rather than a compartment of two. Suggested activities therefore take into consideration an integration of the four languages skills, but during assessment emphasis will be given to speaking and listening, since reading and writing, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रीडिंग कम्प्रिहेंशन के बारे में, राइटिंग स्किल्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. हाउ कैन बी डेवलप्ड listening and speaking skills, ASL, assessment of listening and speaking. Assessment of listening and speaking skill, 5 marks for listening skills and 5 marks for speaking skill, total 10 marks. So for the activities, what the activities will be for these listening skills? Subject teacher must refer to book prescribed in the syllabus. In addition to the above, teachers may plan their own activities and create their own material for assessing the listening and speaking skills. So dear students, assessment for listening and speaking skill, इसमें टीचर्स जो इंटरनल टीचर सब्जेक्ट टीचर होंगे वे अपनी खुद की एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट टीचर कोई बुक्स प्रेस्क्राइब करेंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड. इसका जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर फॉर असेसमेंट, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के लिए बोर्ड ने कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर रखे हैं और हमें उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है. तो पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट एंड parameters for assessment of listening and speaking. So the listening and speaking skills are to be assessed on the following parameters. A, interactive competence, और interactive competence में initiation, your turn taking, relevance to the topic, it will be checked. Second thing, that is fluency, and under this parameter, fluency parameter, your examiner will check your cohesion, coherence and speed of delivery.
कि हाउ you are delivering the speech, how much fluent you are during your speaking. C. Pronunciation. Your pronunciation will be checked, how you pronounce the words. And D parameter, your language will be checked. In language, your grammatical accuracy and diction, vocabulary, your vocab and grammar accuracy will be checked. इसके लिए बोर्ड ने कुछ सजेस्टिव रूब्रिक्स बनाए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीन पे एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए आपका जैसे इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन के लिए बोर्ड ने 5 सजेस्टिव वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, इसके लिए भी बोर्ड ने टोटल 5 पैरामीटर्स फिक्स किए हैं। जैसे नोटिसेबली है, लॉन्ग पॉजेज, रेट ऑफ स्पीच इज स्लो, usually fluent, produce simple speech, is willing to speak। प्लीज आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आज हम जो भी इंटरनल असेसमेंट डिस्कस कर रहे हैं माय डियर लर्नर्स, क्लास 12th के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ 10 marks for them, 10 marks for assessment of स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट है वोकेब। वोकेब के लिए टोटल 5 पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। 5 डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में है, 1 2 3 4 5। आप इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स डेवलप करिए। जहाँ तक शेड्यूल की बात है, the practice of listening and speaking skills should be done throughout the academic year. Throughout the academic year, your subject teacher sometime assign you to read the poem, to read the prose, और उसके बाद है द फाइनल असेसमेंट ऑफ द स्किल इज टू बी डन एज पर द कन्वीनियंस एंड शेड्यूल ऑफ द स्कूल। तो एकदम क्लियर है आपका। जैसे ही प्रैक्टिकल मेन वाले सब्जेक्ट के होते हैं, इन बिटवीन दैट प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट टीचर आपको डेट देके और ASL स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल टेस्ट कराएंगे। लिसनिंग टेस्ट में उसमें एक अनसीन पैसेज, that unseen passage will be read by your subject teacher and that unseen passage will read out before the students twice, and after listening that unseen passage the student will supply the answer. There would be the different varieties of question may be the type of MCQs, uh, short answer type, true false, fill in the blank. Let's come to the project work. Project work plus Viva. For both, board has decided 10 marks. 5 marks for project file and 5 marks for your Viva voice. So out of 10 marks, 5 marks will be allotted for the project report. And in project में आपको क्या क्या करना है, प्रोजेक्ट में रिपोर्ट तैयार करना है, स्क्रिप्ट तैयार करनी है, एसेज एंड 5 marks फॉर द वाइवा। अब जो भी प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे, आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, इंटरनल एग्जामिनर होंगे, वो आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके लिए जो शेड्यूल है, स्कूल में रिफर टू द सजेस्टिव टाइमलाइन गिवन इन दीज गाइडलाइंस फॉर द प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड वाइवा वोस फॉर ASL बेस्ड प्रोजेक्ट। The final assessment of the skills may be done on the basis of parameters suggested by the board. Language teachers, however, have the option to adopt, modify these parameters according to their school specific requirements. Suggestions for project work. अब आपके दिमाग में आता है प्रोजेक्ट वर्क क्या है, तो बोर्ड ने इसके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन सजेशंस दे रखी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क। और इस सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क में द प्रोजेक्ट कैन बी इंटर डिसिप्लिनरी इन थीम, द आइडियाज, इश्यूज
highlighted in the chapters, poems, drama given. The prescribed books can also be developed in the form of a project. A student can also take up any relevant and age appropriate theme. तो ये जो प्रोजेक्ट हैं आपको आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा चैप्टर के बेस दिए जा सकते हैं, आपके पोएम्स पे, ड्रामा पे, जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उन पे भी दिया जा सकता है। अलग से आर्टिकल या एसेज लिखने के लिए भी टॉपिक मिल सकता है। कुछ जो लिटरेरी फिगर्स हैं हमारे सिलेबस में, जो राइटर्स हैं, उनके लाइफ स्केच, उनके अचीवमेंट्स, उनके जो भी वर्क्स हैं उनके बारे में भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। सच टॉपिक्स में बी टेकन अप टू द प्रोवाइड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सम सजेशंस आर एज फॉलो। आप इसमें इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च हो सकता है। सेकंड है आपका स्टूडेंट्स राइट डायरेक्ट एंड प्रेजेंट अ थ्योरेटिकल प्रोडक्शन, वन एक्ट प्ले, इस पे भी आप कर सकते हैं। फिर है इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए हैं इंस्ट्रक्शंस। और जो भी हैं पैरामीटर्स फॉर ओवरऑल असेसमेंट, तो ओवरऑल असेसमेंट में आपका प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, फ्लुएंसी, इतने पॉइंट, इतने पैरामीटर्स पे आपको चेक किया जाएगा। और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे या जो भी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपका रहेगा, completion of the work that student produced during the process of working on their ALS project. The project portfolio may include the following। ध्यान रखना आपकी जो भी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए बोर्ड ने एक प्रॉपर गाइडलाइन दी है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के लिए। इसमें फर्स्ट आपका कवर पेज है। कवर पेज में क्या रहेगा? टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, स्कूल डिटेल्स, इसमें स्कूल का डिटेल्स, स्कूल का लोगो, और डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, सेक्शन, बोर्ड रोल नंबर। सेकेंड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ऑब्जेक्टिव गोल्स, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके क्या पर्पज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं। थर्ड वन है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, एक सर्टिफिकेट इंक्लूड करना है, ये रहेगा आपका थर्ड वन। फर्स्ट कवर पेज, देन स्टेटमेंट पर्पज और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, थर्ड सर्टिफिकेट, फोर्थ स्टूडेंट्स एक्शन प्लान फॉर द कंप्लीशन ऑफ असाइंड टास्क। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल्स सच एज स्क्रिप्ट्स फॉर द थिएटर, रोल प्ले, क्वेश्चनरीज फॉर इंटरव्यू, written assignments, essays, survey report, and other materials evidence of learning progress and academic accomplishment। अब एक बार बात हमारे दिमाग में आती है कि जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा कितने वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये वर्ड्स टोटल होंगे, बोर्ड ने इसके लिए फिक्स कर रखा है 800 to 1000 वर्ड्स। एस्से, इट मे बी एस्से और स्क्रिप्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। स्टूडेंट ग्रुप रिफ्लेक्शंस, if possible photographs that capture the positive learning experience of the student। list of resources, आपको बाइब्लियोग्राफी भी बनाना है कि आपने कहाँ से लिया, कहाँ से अपने कंटेंट को लिया है, उसके लिए रिसोर्सेज लास्ट में देना है, की रिसोर्सेज। The following points must be kept for consideration while assessing the project portfolio। Quality of content of the project, प्रोजेक्ट का एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। Accuracy of information, adherence to the specified timeline, content in respect of spellings, grammar, punctuation, clarity of thoughts and ideas,
Then your creativity will be checked in the project, in your project work. Contributions by group members, knowledge and experience gained. सजेस्टिव टाइमलाइंस जो है इसके लिए, द 5 स्टेप्स इन प्रोजेक्ट प्लान, आपके प्रोजेक्ट प्लान में ये 5 स्टेप्स होना चाहिए। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, सेकेंड वन प्रोजेक्ट प्लानिंग, थर्ड वन एग्जीक्यूशन, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन एंड एट लास्ट क्लोजर। The 5 steps in project plan. First one is project initiation, second is project planning, third execution, fourth is implementation and fifth is closure. तो एक बार फिर डियर स्टूडेंट, आप अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या रखना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए। 20 मार्क्स का एक बहुत ही बड़ा की रोल है आपके परसेंटेज रेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो भी रिटन एग्जाम है आपका 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के लिए डेफिनेटली all you have to go through these guidelines, suggestive value points and parameters that has been already decided by the board. I hope after this video there should be no any confusion regarding internal assessment for English core 301। हमने यहाँ पूरी डिटेल में आपकी गाइडलाइंस, इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 11th and 12th both discussed in detail. Thanks a lot. Have a nice day. Hope for your best.